Okay, so in this one, the first statement system.out.println, इसमें वो क्या चेक कर रहा है? It is checking the length. Here also it is checking the length. और इसके बीच में क्या है? There is a sign of greater than. Okay. अब आपको क्या करना है? A of 0. मैंने जैसे अभी इससे पहले भी बताया था, 0 means the index of the first element of the array. That means यहाँ पे ये 0 element है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो 0 element पे है Delhi. तो what is the length of it? Length is 1, 2, 3, 4, 5. So length of A of 0 is 5, and length of A of 3 they have asked here. 3 means this one, Lucknow. That is obviously more than 5, 7. So the condition becomes something like this. So do you think this is evaluated as a true? No, it is getting evaluated as a false because 5 is not greater than 7. So the answer will be false. Okay, then we come to the next statement. A of 4, that means it is talking about A of 4. R of 4 means it is talking about the fourth element of the array. It is telling for the substring. Now how substring works? If I write here substring, and I mention here example, I mention 3. So what this indicates, start from the third index till last. Third index I'm telling, not third element, third index. Okay, so example, this is the third index. From here till last, till the string ends or till the array is going on, till that everything should be printed. But if the same substring is having two arguments or two parameters, example 3, 5, just a minute, we will take the same example which is given here, string substring 0, 3, and they have asked to substring from where? From the arg of 4, that is fourth element. They are asking for the extract substring from the index 0, from the index 0. Okay, so index 0 in this is, so Jaipur it is written. So index 0 is starting from here, and it has till 3. Till 3 means it is not going to include the 3. It will be till second. So 0, 1, 2. So this will be extracted. This third one will not be included. So the last will be exclusive, means whatever is given as the second parameter minus 1 to that, till that index it will be extracting. But if the second index is not given, second index दिया ही नहीं है, तो आपको जो फर्स्ट जो पैरामीटर दिया है वहाँ वो दिया हुआ है, वहां से लेके लास्ट तक पूरा स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग निकालना है और आउटपुट में लिखना है. तो हियर इट विल बी JAI. क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखना है, ओनली वन इंडेक्स गिवन, तो उस इंडेक्स से जाना है. अभी 3 दिया है तो डोंट गो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मुंबई से स्टार्ट नहीं करना, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है. तो थर्ड इंडेक्स इज लखनऊ, नॉट मुंबई. ओके, ये ध्यान से देख के करना है. चलो मूव टू द नेक्स्ट. Give the output of the following program segment and also mention how many times the loop is executed. मतलब एक तो आपको इस प्रोग्राम में दो चीजें करनी है, एक आउटपुट देना है और दूसरा बताना है how many times the loop is executed. Okay, so now see, loop execute कब होता है? जब कंडीशन ट्रू होती है तभी loop execute होता है. तो यहाँ पे आप चेक करो, ये 5 दिया हुआ है I, और यहाँ पे ये कंडीशन में दिया हुआ है I greater than 10. तो I तो 5 है, I greater than 10 हो ही नहीं सकता, कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ये लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ. ओके, लूप तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर आउटपुट क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखना इसे. ओके, बहुत जरूरी है ये. फॉर लूप के बाद कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिया इनने. ठीक है, जब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता है तब क्या इफेक्ट होगा उसका? फॉर लूप का, फॉर लूप से कनेक्टेड खाली एग्जैक्टली उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, बस. उसके आगे वाले स्टेटमेंट उस लूप से कनेक्टेड नहीं होंगे. ओके,
इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है तो खाली एक ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो फॉर लूप के बाद लिखा होगा वो उससे कनेक्टेड होगा, मतलब वो उस लूप में एग्जीक्यूट होगा। तो ऑब्वियसली जब ये लूप ही नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, जैसे मैंने बोला कि कंडीशन फॉल्स है तो लूप भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो तो फॉर लूप के अंदर लिखा है। कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला तो क्या हुआ, उसके नेक्स्ट तो है, एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन है फॉर के, ठीक है, तो दैट लाइन इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो डायरेक्टली उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे i इंटू 4, आई की वैल्यू क्या दी है, आई देख सकते हो फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू 5 थी, तो 5 इंटू 4 लूप के अंदर थी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि वो लूप से कनेक्टेड है वो लाइन, पर आई को जो वैल्यू असाइन की थ्रू आउट द प्रोग्राम यू कैन यूज दैट वैल्यू, राइट। तो आई की वैल्यू 5 असाइन थी, तो 5 4 20, so the output printed on the next line will be 20 because print ln is given. I hope you are getting what I am trying to explain you, okay. Next, what will this code print? ये सबसे पहले देखना, ये एक array है, ठीक है, int 5, that means it is from 0 1 2 3 4। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं असाइन की, ये मैंने इंडेक्स नंबर बोला है, मतलब मेमोरी में कुछ ऐसा अलॉट हुआ होगा 5 इंटीजर्स के लिए, पर ये खाली पड़ी है, इनमें वैल्यूज नहीं दी है, और वैल्यूज ना दे के भी वो वैल्यूज को प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे क्या होगा, मेमोरी में जो भी कचरा पड़ा होगा यहाँ वहाँ वो जाके इनमें स्टोर हो जाएगा जब तक इसको कोई असाइन नहीं होती वैल्यू, तो जो कचरा पड़ा है दैट इज नोन एज अ गार्बेज वैल्यू, ओके। इट इज नॉट गोइंग टू शो यू 0 0 0, अगर वैल्यू असाइंड ही नहीं है तो वो 0 0 0 भी क्यों दिखाएगा, जो भी मेमोरी में यहाँ वहाँ वैल्यूज होगी वो आके वहाँ पे स्टक हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कास्टिंग शोन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। दो होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कब होता है, इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिकली इट इज डन, एक्सप्लिसिटली मीन्स वी आर फोर्सफुली डूइंग इट। तो इन दिस वन, जब भी ऐसे ब्रैकेट में आप कोई डेटा टाइप लिखते हो दैट मीन्स, और चाहते हो कि ब्रैकेट में जो लिखा है उसके बाद जो भी लिखा हुआ है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप, दैट मीन्स यू आर एक्सप्लिसिट, दैट इज एक्सप्लिसिट, दैट मीन्स यू आर एक्सप्लिसिटली ट्राइंग इट। और यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया है और डायरेक्टली उसको एक्स को असाइन किया, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जो भी होगा अपने आप इंटरनली होगा, दैट मीन इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट अभी याद रखना, एक्सप्लिसिट जब भी ब्रैकेट में कुछ डेटा टाइप लिखा है और उसके आगे कुछ वैल्यूज लिखी है, या यहाँ पे लिख दिया इंट, यहाँ पे लिख दिया 32, that means you are trying to explicitly trying to convert this into this one you are trying to convert in this data type, okay. so this type is called explicit। और डायरेक्टली ऐसे ही कुछ लिखा है जहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हो रहा, बीच में कोई डेटा टाइप नहीं लिख रहे हो, दैट इज implicit type of conversion। next, Mississippi and index of s। what do you mean by index of? Index of means the index, what is the index of it, so they are asking for the index of s। तो खाली index of s लिखा है तो जो सबसे पहला s आया होगा उसका इंडेक्स होगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ लिखा है, राइट। तो what is the index of that? Index starts from 0, so 0 1 2, so the first s is at the position 2 plus again the same Mississippi dot last index of I। so last index of my, it means wherever is the last index I कहाँ पे लास्ट है वो वाली इंडेक्स लेनी है, तो इट इज एट द प्लेस, इंडेक्स उसका फाइंड आउट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज एट द 10th पोजिशन, 10th इंडेक्स। तो इन दोनों को प्लस करके यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 12। आई होप दिस इज क्लियर। So let's move to the next one. I'm just checking कुछ और भी questions हैं क्या? Okay, let's see. यहाँ तक समझ में आ गया। Next. Now what we are doing here? Compare to. Compare to आपको हमेशा क्या आउटपुट देगा? It is going to give you some type of integer. ये कंपेयर करके आपको ट्रू या फॉल्स नहीं देगा, ओके। इट विल गिव यू अ नंबर,
how it will give you the number? It is going to compare a character by character. So C and C are both same, no issues. Next it comes to the A and A, again they are both same. Now it comes to the B and D. As I told you before, ASCII value of A is 65 till Z is 90. So what will be the capital B value? It will be 66. What will be the value of D? It will be 68. So when they are compared, so here is where they find the different characters. So they both will be subtracted and the answer what they are going to get is -2. So the answer which you are going to get from this statement is -2. आई होप इट इज क्लियर. कंपेयर करना है दोनों तरफ से एक एक डिजिट एक एक अल्फा कैरेक्टर्स को, जहाँ पे भी डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखे जिस इंडेक्स पे, वहाँ के दोनों के ASCII वैल्यूज लेके उनको सबट्रैक्ट करना है एंड वॉट एवर आंसर यू गेट दैट इज द आउटपुट. ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. सीलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सीलिंग का मतलब अपर साइड इट विल गो 4.2 दिया है, तो आइदर द आंसर शुड बी 4.0 और 5.0. तो अपर साइड जाएगा तो आंसर विल बी 5.0. हमेशा डबल डेटा टाइप में ही इसका वैल्यू आता है आउटपुट, एंड एब्सोल्यूट मीन्स इट विल गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन द इंटीजर फॉर्म. तो -4 का बन जाएगा 4. ऑलरेडी मैंने ये पहले कर लिया हमने इसी वीडियो में, ठीक है. नेक्स्ट अगेन टर्नरी ऑपरेटर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वी हैव सीन. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसको टर्नरी ऑपरेटर यूज करके लिखना है. टर्नरी ऑपरेटर मीन्स क्वेश्चन मार्क एंड कोलन्स एंड इक्वल टू. These three things you need to remember. Here comes the variable in which you are going to store the answer, and here you are going to keep the condition. Already हमने देखा, and here part 1 and here part 2. Now see condition. Here is the condition given. So just mention that condition. Okay. Now even and odd. So you need to print this. Here what they are asking to print this. What you can do, store in some variable. It is a even and odd. So just write down a string s, store in the s, any variable you can take. One is the even and the other one will be odd. And once this is stored, what you can do on the next line, system dot out dot print, just print the s, because in the s it is stored. This is how, see, already I told you this is a part 1 and this is a part 2. This is part 1, part 2, and this is the condition which is mentioned here. So exactly same in the ternary operator you have to put and you have to write. Let's go next for the next one. Now convert the following while loop to the corresponding for loop. See, for loop, as I discussed before in this same video,